guys, welcome to the day 87 of our spoken English series, and today we will be continuing our yesterday's session on how to show your gratitude. Before we move further, let me tell you a tiny story first. When I was a child, my parents as well as my teachers used to make me write thank you notes on my birthday for every present I had received. And at that time, I used to find that task quite tiresome. But now, as an adult, I do understand the importance of thanking someone for their generosity to the person who matters to you the most. And it's high time you understood that too. So let's move further. But before we start our session, here is your yesterday's task which you were supposed to perform. So let's do this first. There will be a period of dash when the new government takes over. तो यहाँ हो जाएगा there will be a period of transition. Next में आते हैं. The building was badly damaged, but they are planning to restore it. To restore it. Or restore is our verb, and the noun form of this word restore is restoration. Restoration means मरम्मत करना. Buildings के केस में हम ये टर्म यूज करते हैं. Next में आते हैं. As a company, we believe in evolution, not revolution. Next is they have changed their minds completely. This is a dash of the previous policy. So this is a reversal. This is a reversal of previous policy. Next में आते हैं. After years of civil war, the country will find it difficult to go back to normal. अगर यहाँ पे back given नहीं होता, उस केस में हम ये लगा सकते थे to revert to normal. ये हो सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे back given था, उस केस में हमें go यहाँ लगाना पड़ा. नेक्स्ट में आते हैं. We will have to dash to climate change or it will be a disaster for the planet. We will have to adapt. We will have to, I'm writing it down here, adapt or adjust. Next, once the ice caps melt at the poles, the change is completely irreversible. Irreversible. The last one is we will need to dash all the new ideas in their proposed plan. We will need to assimilate. We always use this term assimilate in case of ideas. Okay, and now moving to the next part, saying thank you to your boss. और यहाँ पे we have to keep one thing in mind, that while dealing with your boss, you have to be highly formal. वहाँ पे प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था कि हम टीचर को कैसे अपना ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं. वहाँ पे अगर आप इनफॉर्मल फ्रेज यूज़ करते हो तो वो चल जाता है, लेकिन बॉस के केस में आपको कंप्लीटली फॉर्मल रहना पड़ेगा. तो उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं अभी आगे कि हम किस तरह से उन्हें थैंक यू बोल सकते हैं. वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ये हो सकता है that thank you for extending compassion and flexibility when I needed it. ओके, अब यहाँ पे आप टर्म्स देखना कितनी फॉर्मल यूज़ हो रही हैं. कंपैशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो इस तरह की टर्म्स हम यूज़ करते हैं. प्रीवियस सेशन में हमने ऐसा नहीं किया था. इसी तरह से नेक्स्ट ये भी हो सकता है. एज अ बॉस और सुपरवाइजर, you are truly inspirational.
You are truly inspirational to your staff. अब बजाय कि सीधा ये बोलने के कि आप बहुत अच्छे हो, यू आर अ वेरी गुड बॉस, आप इस तरह से भी बोल सकते हो और ये काफ़ी फॉर्मल भी साउंड करेगा। इसके अलावा ये भी हो सकता है योर सपोर्ट एंड dedication to your team has earned you much deserved admiration। तो अभी आप देख रहे हो हम कितने हैवी वर्ड्स यूज कर रहे हैं। That you have earned, admiration, dedication। और मेथड्स पे आते हैं, ये भी हो सकता है। अगर सिंपलेस्ट वे अगर आपको चाहिए तो आप ये भी बोल सकते हो that the workers have seen your dedication and we would like to express our appreciation for that। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज हमने यहाँ पे रखी है। इसके अलावा इस तरह से भी कहा जा सकता है that we are grateful for your kindness। If he or she is kind, only in that case you have to say this, otherwise skip this part। We are grateful for your kindness, commitment and loyalty to all of us। इसके अलावा ये भी हो सकता है that if there were a boss who deserves praise and adulation, adulation, adulation का मीनिंग भी होता है सराहना, तारीफ, appreciation and adulation, that person is you। ये भी हो सकता है। कुछ और फ्रेजेस भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। Thank you for providing us with such a great working environment। ये भी हो सकता है। या फिर आप उनकी एबिलिटीज पे जाना चाहो, उनके फेथ पे जाना चाहो तो आप ये भी बोल सकते हो that I want to thank you for the expression of faith in your employees' abilities। कि आप जो फेथ रखते हो अपने एम्प्लॉयज की एबिलिटीज पे, कि उनके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाह रही हूँ। इसके अलावा ये भी पॉसिबल है that I would like to sincerely, this term is highly formal, to sincerely thank you for your generosity।
or your generous gestures. Generous gestures. अब आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि हमने इनफॉर्मल टर्म्स को नहीं यूज़ किया, उन्हें अवॉइड किया है, और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं फेथ, एबिलिटीज़, सिंसियरली, जनरस जेस्चर्स, जनरोसिटी, इस तरह के टर्म्स का. इसके अलावा ये भी पॉसिबल है दैट I value the trust that you have put into your employees. Your employees, ये तो तब की बात है जब आप सबको साथ में लेके चल रहे हो. अदरवाइज आप ये भी बोल सकते हो that you have put into me. वो भी इक्वली सही होगा. यहाँ पे बस आप इंडिविजुअली उनको थैंक कर रहे हो. सो I value the trust that you have put into me, and I will work hard to maintain that. To maintain that. इसके अलावा thank you, एक और थोड़ी सी फॉर्मल टर्म हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं. Thank you for the opportunities. For the opportunities that you have provided, and also for having your faith in me. ये भी हो सकता है. इसके अलावा कुछ और फ्रेजेस भी देख लेते हैं. ये हो जाएगा allow me to express my sincere. अब देखिए, allow me to express और allow me to say this thing, ये हम तब स्टार्ट करते हैं जहाँ पे सामने वाला पर्सन आपसे कहीं ज़्यादा ऊपर रैंक पे हो. तो वहाँ पे हम ये बहुत ही पोलाइटली बोलते हैं that allow me to do this, allow me to say something, allow me to say a few words in your praise, इस तरह से. So allow me to express my sincere gratitude. और यहाँ पे सिंसियर की बजाय आप सिंसियरेस्ट भी कर सकते हो. In that case, you are just increasing the degree to the superlative form. Sincerest, R-E-S-T. Gratitude for this or for every opportunity that you have given me. That you have given me. ये भी हो सकता है. या फिर सिंपली ऐसे भी बोला जा सकता है that I would like to express my heartfelt या फिर एक और टर्म हो सकती है heartfelt के लिए cordial thanks for giving me this opportunity. ये भी हो सकता है. अच्छा, कई बार क्या होता है कि आप कोई छुट्टी लेना चाह रहे हो, कहीं वेकेशन पे जाना चाह रहे हो, या फिर वैसे ही आप 1 और 2 डेज ऑफ लेना चाह रहे हो. उस केस में आप रिक्वेस्ट डालते हो और वो आपकी एक्सेप्ट हो जाती है. जो जॉब करते हैं उनको पता होगा बहुत टफ काम होता है, बट स्टिल अगर आपकी पहली बार में ही वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है तो वहाँ पे फिर आप ऐसे बोल सकते हो उन्हें, थैंक यू वेरी मच for putting your trust in me
and agreeing to my holiday request. ये हो सकता है. इसके अलावा एक और फ्रेज आप यूज कर सकते हो, that I am eternally grateful. I'm eternally grateful for your trust and appreciate you for allowing me to have this time off work. अब यहाँ पे ध्यान देना, OF ऑफ वर्क नहीं कहा हमने, टाइम ऑफ, OFF. जब भी हम ये यूज करते हैं टाइम ऑफ, दैट मीन्स हम वहाँ पे छुट्टी की बात कर रहे हैं. तो ये सारे फ्रेजेस पॉसिबल थे जो आप बोल सकते हो. सभी फ्रेजेस हाईली फॉर्मल थे, इन्हें आप किसी भी फॉर्मल सिचुएशन में यूज कर सकते हो. तो अभी आगे चलते हैं और अभी बारी आती है उस सिचुएशन की कि जहाँ पे आपके सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आपके एक्वेंटेंसेस, आपके कॉलीग्स आए हुए हैं आपके वेडिंग फंक्शन में. तो वहाँ पे आप किस तरह से अपना थैंक्स उन तक पहुँचाओगे वो देखते हैं. आप इसे ज़रूर एक बार पढ़ना, और जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ते हो या फिर कोई भी एडिटोरियल पढ़ते हो किसी न्यूज़पेपर का, या फिर रैंडमली कोई भी ब्लॉग आप कहीं पे भी पढ़ते हो, तो ट्राई करो कि आप मन में उसको पढ़ने की बजाय यू रीड आउट दैट लाउडर. तेज तेज बोल के आप पढ़ो. इससे क्या होगा, एक तो आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगी, दूसरा यू गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो चलिए आगे मूव करते हैं. अभी यहाँ पे क्या क्या फ्रेजेस आप यूज कर सकते हो. अब यहाँ पे इनफॉर्मल फ्रेजेस चलेंगी सारी. देखो, सबसे सिंपलेस्ट तो ये हो जाएगी थैंक यू फॉर कमिंग, या फिर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. इनके अलावा we appreciate you sharing our celebration with us. ये हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है that we really appreciate your coming to our place, we really appreciate your presence here. Appreciate your coming to our place, या फिर इसकी बजाय your coming to our place की बजाय आप ये भी कह सकते हो appreciate your presence here. इसके अलावा ये भी हो सकता है that I can't thank you enough. इस तरह से भी आप फॉर्मुलेट कर सकते हो अपनी फ्रेज को. I can't thank you enough for the wonderful gift that you have given us by coming here on our very special day. ये हो सकता है. इसके अलावा we will remember this day, and most importantly your contribution to this day forever. इसके अलावा ये भी हो सकता है that you were invaluable today for all your help and attention.
कि आपने जो भी हमारी हेल्प की है या फिर आपने जो हमें अटेंशन दी है उसके लिए यू आर इनवैल्यूएबल। इसके अलावा ये भी पॉसिबल है दैट थैंक यू फॉर या फिर थैंक यू सो मच फॉर योर जेनरस गिफ्ट। और कौन सा गिफ्ट? ऑफ स्पेयरिंग योर टाइम, योर प्रीशियस टाइम। हम बोलते हैं ना समय निकाल के आप आए, तो उसको हम बोलते हैं स्पेयर टाइम, ऑफ स्पेयरिंग योर प्रीशियस टाइम फ्रॉम योर बिजी लाइव्स। कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आए, उसका धन्यवाद। और इसके अलावा एक लास्ट फ्रेज और देख लेते हैं यहाँ पे। ये भी पॉसिबल है दैट वर्ड्स कैन नॉट डिस्क्राइब how grateful we are right now। ये भी हो सकता है। तो अभी आपने जितने भी फ्रेजेस किए हैं, इन सब में क्या था कि आप अपने गेस्ट को थैंक यू बोल रहे हो। अब सामने से भी तो थैंक यू आ सकता है ना, या फिर ये भी हो सकता है आप अपने किसी फ्रेंड के किसी वेडिंग फंक्शन में गए, तो वहां पे आप किस तरह से उनको थैंक यू बोलोगे, वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप उनकी साइड हो, आपने साइड स्विच कर ली है अभी, तो ये हो सकता है दैट इट वॉज अ प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ योर स्पेशल डे, कि आप उनके सारी रस्मों में शामिल हुए और अब आप जा रहे हो, उस टाइम पे आप ये बोल रहे हो दैट इट वॉज अ प्लेजर टू बी विद यू और टू बी अ पार्ट ऑफ योर स्पेशल डे। इसके अलावा थैंक यू for inviting me to share your special day। इसके अलावा सिंपलेस्ट वे है ये, I am extremely और immensely happy to be a part of your celebration। ये हो जाएगा। तो ये हमने दोनों साइड से जो फ्रेजेस यूज हो सकती हैं वो यहाँ देख ली। अभी नेक्स्ट में मूव करते हैं, और अभी देखिए, और अभी उन लोगों को भी हम थैंक यू कहना सीख लेते हैं कि जिनको हम इतना अच्छे से जानते नहीं हैं, लेकिन पिछले 1-2 दिन में या पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जो काम किए हैं वो हमें बहुत अच्छे लगे, जिनकी वजह से हम ग्रेटिफाइड फील करते हैं। तो वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेइंग थैंक यू एट अ होटल रिसेप्शन व्हाइल चेकिंग आउट। तो वहां पे आप बोल सकते हो दैट आई वुड लाइक टू compliment your hotel on the excellent service that I received in past 2 या फिर 3 जितने भी दिन हैं days। तो एक बात ध्यान रखना यहाँ पे, जब भी कभी आप कॉम्प्लीमेंट ये वर्ड यूज करो या फिर कॉन्ग्रेचुलेट ये भी यूज करो, हालांकि यहाँ पे ये यूज नहीं करना कॉन्ग्रेचुलेट, मैं आपको जनरली बता रही हूँ। अगर आप कॉम्प्लीमेंट या कॉन्ग्रेचुलेट ये वर्ड्स यूज करते हो तो उसके बाद में हमेशा ही आपको ऑन प्रपोजिशन को यूज करना है। अब यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते दैट आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट योर होटल फॉर द एक्सीलेंट सर्विस, नहीं, यहाँ पे आप ऑन यूज करोगे, ऑन द एक्सीलेंट सर्विस। इसके अलावा ये भी हो सकता है, अगर आप सिंपलेस्ट वे में बोलना चाह रहे हो तो दैट आई एम मोस्ट ग्रेटफुल फॉर योर सर्विसेज, ये भी हो सकता है। इसके अलावा
या फिर ये भी हो सकता है दैट I wanted you to know that your services and professionalism that I experienced yesterday was really above my expectations. कि जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छी आपने सर्विसेज दी पूरे प्रोफेशनलिज्म के साथ में. या फिर I am pleased, ये भी आप यूज़ कर सकते हो. I am pleased with, उसके बाद में फिर से यहाँ से हो जाएगा स्टार्ट योर सर्विसेज एंड प्रोफेशनलिज्म, ये हो जाएगा. या फिर I appreciate the excellent service provided by your supporting staff. ये भी. या फिर एक लास्ट फ्रेज और देख लेते हैं यहाँ पे, that such a commitment to great customer service of your hotel is to be commended. या फिर is to be appreciated. या फिर is to be admired. तो ये इतने सारे फ्रेजेस मैं आपको क्यों बताती हूँ, ताकि आप इनकी फॉर्मेशन देख सको. अब यहाँ पे देखिए, प्रीवियस कुछ फ्रेजेस में हमने कमेंडेबल ये वर्ड यूज़ किया था, और यहाँ पे हमने कमेंडेड ये यूज़ किया है, अप्रिशिएटेड, एडमायर्ड, ये सारी चीज़ें यूज़ की हैं. कमेंड का मीनिंग भी वही होता है, एडमायरेबल होना, कोई चीज़ तारीफ़ के लायक होना. और ये सिर्फ होटल के केस में नहीं, ये आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, वहाँ पे आपको सर्विसेज काफ़ी अच्छी लगी, तो वहाँ पे भी आप बोल सकते हो. बस यहाँ पे होटल को आप रिप्लेस कर देना रेस्टोरेंट वर्ड से, ये हो सकता है. तो अभी आगे चलते हैं. अब लास्ट में टर्न आती है आपके कलीग्स की, यानी कि जो आपके साथ में वर्क प्लेस पे काम करते हैं. उनको कैसे हम बोल सकते हैं वो देख लेते हैं. थैंक यू सो मच, your support is greatly appreciated. ये हो सकता है. ये लाइन हमने प्रीवियस ग्रेटिट्यूड में भी यूज़ की थी, ये हम यहाँ पे भी, इनफैक्ट ये हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा I am the most grateful for your support. ये भी हो सकता है. इसके अलावा thank you for your assistance. यानी कि आपने जो सहारा दिया है उसके लिए थैंक यू. for your assistance या फिर for raising your concerns, या फिर for your kind cooperation. ध्यान रखना, कॉरपोरेशन मत लगा देना यहाँ पे, कोऑपरेशन ये यूज होगा. इसके अलावा योर कंसिडरेशन, इस तरह से हम कह सकते हैं. या फिर कई बार हम अपने कॉलीग्स को जो हमसे काफ़ी फ्रेंडली होते हैं उनको ये भी बोल देते हैं ना कि मुझे झेलने के लिए थैंक यू. तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं वो देखेंगे अभी.
वो ये हो जाएगा, देखो अगर आपको थोड़ा सा फॉर्मल वे में बोलना है तो आप ये बोल सकते हो दैट थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। या फिर थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में अगर आप इसको बोलना चाह रहे हो तो वहां पे ये आप बोल सकते हो दैट थैंक यू फॉर पुटिंग अप विद मी, पुटिंग अप विद मी, टू पुट अप विद समवन यानी कि उसको झेलना। सो गाइज दैट वॉज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। और अगर आप ये चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, किसी स्पेशल टॉपिक पे मैं कोई कॉन्वर्सेशन लेके आऊँ तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टा पे, या फिर आपकी कोई और क्वेरी है तो वो भी आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो। सो गाइज थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग।